Hi everyone, my name is Isha Sharma and I have recently enrolled myself in the PhD program of Jamia Millia Islamia in the Department of Economics. Today I'll be sharing my PhD preparation strategy with all of you. So before starting, I would like to give a brief account of my academic background. So I have done my bachelor's in economics from IP College for Women, Delhi University. Then I went for my master's from Ashoka University. Meanwhile, I've also worked extensively with the Ministry of Health and Family Welfare and JPAL, which is the research unit of MIT. So I worked in the research arena to gauge experience and to know more about my subject field. Now I would like to discuss about the PhD process at Jamia and how I prepared for it. So firstly, before starting with anything, you need to check your eligibility condition. So you need to go to the website first and check what is the eligibility condition which is mentioned there. Are you satisfying those conditions? If yes, then you proceed with the application form. So when you are filling the application form, there are two options. So the first option is via the entrance mode, and the second one is for the exempted category students. Now when you are preparing for the entrance exam, when you are choosing the first option, then you have to give an entrance exam which comprises of two sections. The first section is basically talking about the basic questions on research, including the research methodology, research ethics, what are the different methods which are used in the research area, etc. When you come to the second section of the paper, they will be asking you your subject related questions, where you should be having a very good knowledge till your master's level or whatever subject you are preparing in. Okay, and after you clear the entrance exam, you have to appear for the interview. However, for the exempted category students, you basically have to fulfill a few conditions. Either you should have qualified the national level examinations such as UGC NET, UGC JRF, CSIR NET, CSIR JRF, or if you have availed the ICCR fellowship scheme, and there are many other exams. You can also check the website for the same, listing the national level examinations for the exempted category. Now these exempted category students have to directly appear for the interview. They do not have to appear for the entrance exam. Now basically, when your entrance exam, when you have appeared for the entrance exam, then after 15 to 20 days time period, you actually receive your entrance result. Now what happens is, after the university releases the entrance results, it asks the students who have qualified the entrance exam and all the students of the exempted category to submit their research proposals in the respective departments. After you submit your research proposal, they actually come out with the scheduling of the interviews. Now, before going forward, I would like to tell you what exactly is the research proposal. Research proposal is the main pillar of your entire PhD application process, no matter you are applying to which university, which program, but this is the very crucial aspect. So research proposal ke liye, you have to keep a few things in mind very clearly. Firstly, you should be very confident about what research topic you are choosing. You should be the best guide for that topic. You should have an ample knowledge about that topic in detail. So जब भी आप कोई टॉपिक चूज करें, मेक श्योर कि उस पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर होनी चाहिए अवेलेबल, एंड वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ. इट शुडंट बी द केस कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर्स को ही रेप्लिकेट करके अपना टॉपिक बना रहे हैं. इट शुडंट बी द केस. इट शुड डायरेक्टली रिवील व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. So that is very important. So firstly, you have to choose your title whenever you're writing the research proposal. जो आपका टाइटल होगा वो बहुत ही प्रिसाइज वे में आप लिखेंगे, बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए. बिकॉज यू विल रियलाइज, अगर टॉपिक बहुत लंबा होता है किसी प्रपोजल का, सो जो रीडर होता है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है. सो यू हैव टू मेक श्योर इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी आई कैचिंग. आफ्टर दैट यू कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपके प्रपोजल का बैकग्राउंड देगा. जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं उस प्रपोजल में, जिस भी टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड उस इंट्रोडक्शन में होगा. ठीक है. उसके बाद यू कम टू द लिटरेचर रिव्यू.
लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली आप इस बारे में बात करते हैं कि क्या क्या एग्जिस्टिंग पेपर्स उस टॉपिक से रिलेटेड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन सबको आप लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करते हैं। लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पेपर्स होंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पास 2 पेपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 2008 का, एक 2012 का, सो यू हैव टू राइट अबाउट द 2008 paper first and then you proceed to the 2012 paper. That is how you have to proceed. After the literature comes the very important aspect which is the statement of problem. Statement of problem जो होती है वो आपकी पूरी रिसर्च टॉपिक की स्टोरी लाइन बताएगी। जो भी आपकी स्टडी है वो पूरा स्टोरी लाइन, हाउ यू हैव इवॉल्व विद दैट टॉपिक, हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट, फिर आप कैसे उस क्वेश्चन पे गए जो आप एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं। सो इट इज़ लाइक द ट्रेलर ऑफ द फिल्म। तो कोई भी अगर फिल्म का ट्रेलर होता है, व्हाट हैपन्स, आप अगर किसी फिल्म का ट्रेलर देखते हैं वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और उस 1-2 मिनट में वो ट्रेलर आपको मूवी का आइडिया देता है कि व्हाट इज़ इन द मूवी। सो यही होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में, वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, बट इट विल गिव एन एंटायर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आप ये भी मैंशन करेंगे कि क्या क्या रिसर्च गैप है एग्जिस्टिंग लिटरेचर में, जो भी पेपर्स हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो उन पे कैसे इम्प्रूवमेंट है, कैसे आप यूनिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस एग्जिस्टिंग फील्ड में, व्हाट इज़ योर यूनिक आइडिया एंड व्हाट इज़ योर पीस ऑफ कंट्रीब्यूशन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत क्रिस्पली आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है कि व्हाट आर योर की ऑब्जेक्टिव्स, what is the basic problem you are trying to study in your research question. After objectives comes the statement of hypothesis. जो statement of hypothesis है तो वहाँ पर hypothesis is like assertion. तो यहाँ पर for example अगर मेरा topic ये है कि I want to study the impact of COVID-19 pandemic on the environment, on the quality of environment. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे 2 वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया मेरा कोविड-19 पैंडमिक, एक हो गया मेरा एनवायरनमेंट। सो हाइपोथेसिस फ्रेम करते हुए मैं ये लिखूंगी कोविड-19 पैंडमिक हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मेरी असर्शन है, एंड इसको मैं टेस्ट करना चाहती हूँ अपने रिसर्च प्रपोजल में। ठीक है, तो हाइपोथेसिस आप बहुत क्लियरली फ्रेम करेंगे। आफ्टर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस कम्स द एम्पेरिकल स्ट्रैटेजी। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन द एम्पेरिकल फील्ड, तो वहाँ पर आप रिग्रेशन इक्वेशन, जो भी आपकी बेसिक रिग्रेशन इक्वेशन है, जो भी आपका एक्स वेरिएबल है, जो भी आपका आई वेरिएबल है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी आपके हैं, आप उनको लिख सकते हैं डिफाइन करते हुए कि आपके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, किस तरह से आप उनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं सिंपल इक्वेशंस के फॉर्म में। If you don't have empirical work in your topic, that is fine. You can come directly to the prospective methodology. Prospective methodology में क्या होता है, आप ये बताते हैं कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करके अपना रिसर्च क्वेश्चन स्टडी करेंगे। आई वुड प्रेफर एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट those of you who are preparing for it that always choose a topic which has both the things, for which you can go on the field, you can collect data, you can do the primary data analysis, as well as you have the variables of those topic which are released by any government website, so that you also have a double check for the things which you are doing at field. So what I'm trying to say is कि ऐसा कोई टॉपिक जो आप प्राइमरी डेटा के लिए भी यूज़ कर सके, जहाँ पे आप कलेक्ट कर सके डेटा, खुद भी आप रिजल्ट्स निकाल सके और आप गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज़ करके भी रिजल्ट्स निकाल सकें। तो दोनों से आपका जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी। Thereafter you can mention in this heading only, you can mention your sampling strategy. Sampling strategy में आपको बहुत ही exact estimates की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने households को sample करेंगे, कितने दिन आपका सर्वे चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी sampling technique यूज़ करना चाहते हैं। आप किसी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक पे जाना चाहते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सो यू विल वांट कि आप उन लोगों को ही सर्वे करें, आप बाकी को सर्वे ना करें। तो फिर आपको अपनी जो भी आप पॉपुलेशन लेंगे, जो भी आपका सर्वे पॉपुलेशन होगा, उसको आप डिवाइड करेंगे डिफरेंट स्टेटा के अंदर। फॉर एग्जांपल जिस रिलीजन के लिए आप स्टडी कर रहे हैं उसको एक ग्रुप में डालेंगे, दूसरे बाकी रिलीजन के लोगों को दूसरे ग्रुप में डालेंगे। सो यू आर इन अ वे डूइंग व्हाट यू आर फोकसिंग
ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ऐसे ही आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे अपनी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस जो होती हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके प्रपोजल के लिए, सो दैट बिफोर समवन पॉइंट्स इट आउट कि आपके पेपर में ये नहीं है, ये नहीं है, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि आपके पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मेरा फील्ड इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो हर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो डिमांड की साइड या सप्लाई साइड। तो अगर मैं चाहूँ किसी एक टॉपिक पे तो या तो मैं डिमांड पे फोकस कर सकती हूँ या सप्लाई पे। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम फोकसिंग ऑन द डिमांड साइड, तो आई विल हैव टू मेंशन इन माय लिमिटेशंस दैट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द सप्लाई साइड फैक्टर्स, सो दैट आई ऑलरेडी नो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माय पेपर। तो बहुत ही क्लियरली पॉइंटर्स के फॉर्म में आप लिमिटेशंस को भी मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने पेपर में कवर नहीं करी हैं, या फिर क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, डेटा पॉसिटी है, आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन के लिए डेटा नहीं है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन सी आपका क्या टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिमिटेशंस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट कम्स द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस को सिमिलरली जैसे हम लिटरेचर रिव्यू में मैंने आपको कहा था, वैसे ही रेफरेंसेस को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे ईयर वाइज, और एपीएस स्टाइल की जो रेफरेंसेस होती हैं उस वे में आप अपने रेफरेंसेस को लिखेंगे। सो दिस इज इन अ नटशेल व्हाट द रिसर्च प्रपोजल इज ऑल अबाउट। रिसर्च प्रपोजल जब आप सबमिट कर देंगे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद यूनिवर्सिटी एक लिस्ट निकालेगी उन बच्चों का जिन्होंने प्रपोजल सबमिट करा है, बोथ फ्रॉम दोज हु हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस एंड दोज फ्रॉम द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जिन बच्चों ने प्रपोजल सबमिट किया होगा उनके लिए इंटरव्यू की लिस्टिंग आएगी कि उनके इंटरव्यूज़ किन डेट्स पर हैं, उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपको, उसमें आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को ही डिफेंड करना होता है एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। सो रिसर्च प्रपोजल जो आप सबमिट करेंगे वो तो बहुत ही थोड़ा सा लंबे वे में पेजेस, मतलब आप ऐसे आई थिंक इफ़ आई से 10 to 11 पेजेस वॉज द लिमिट, सो उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही प्रिसाइज होगी, बहुत ही कम स्लाइड्स में, बहुत ही कम शब्दों में आपको उस रिसर्च प्रपोजल को एक्सप्लेन करना होगा पैनल में। सो प्रेजेंटेशन बनाते समय ये ध्यान रखिए कि बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके पॉइंट्स मेंशन हो। बहुत लंबी लंबी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट जो आपका रीडर है वो इंटरेस्ट लूज ना करे। तो उस तरह से आप अपनी इंटरव्यू में भी बहुत कॉन्फिडेंटली यू कैन प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल। नाउ आफ्टर दिस comes the final stage of the final stage, which is the result declaration. So accordingly, both from the entrance and from the exempted category mode, I would say दोनों से ही सिलेक्शन, जब एक लिस्ट निकलते जो दोनों से ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस। नाउ how success classes have helped me throughout this journey, that is very very commendable, because I remember success classes से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, and I have seen their videos starting from the very basic on how to choose a research topic, how to be very thorough about some of the pointers which you should be focusing on while preparing your research proposal. ठीक है, how to actually मतलब talk to your supervisor, how should you, what are the pointers you should keep in mind while applying to any program, and also last stage, that is the publishing stage, वहाँ तक सारी videos बहुत ही अच्छी तरह इस channel पे describe हुई हैं, and I have extensively used these materials for my interview preparation. Now after all this, there are some key points which I would like to mention for the future aspirants. The first thing is, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर, मेक श्योर दैट यू आर वेरी थरो विद योर रिसर्च प्रपोजल। जब हम रिसर्च प्रपोजल खुद लिखते हैं तो हम बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो हमें फिगर आउट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने वो पीस ऑफ वर्क खुद लिखा है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेंड योर रिसर्च प्रपोजल टू योर पीयर ग्रुप, so that they can get back to you with very good feedbacks and suggestions. That is the very important thing. The second thing is, because I was from the exempted category, so the second thing is basically that whenever you are applying or whenever you are choosing any university, the foremost criteria is your supervisor. So I would highly recommend कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के प्रोग्राम में, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए
कि आप का जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपके जो सुपरवाइजर के रिसर्च इंटरेस्ट से बहुत हाईली अलाइन होना चाहिए. यू शुड चूज समवन अकॉर्डिंगली कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं आगे. उसके लिए आपको बहुत अच्छे से होमवर्क करना चाहिए. आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए. हर प्रोफेसर की का CV वहाँ पे मेंशन है, रिसर्च एरियाज वहाँ पे मेंशन है. यू कैन हैव अ लुक एट देम, देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट कहाँ पे मैच कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू शुड ऑल प्रोसीड with that, because I would always tell you कि आपका supervisor का choice is the main thing. It is actually the foremost primary thing before applying to any university. You should be very clear about it. After that comes the one question which I have always seen students asking is, what is the right age to start the PhD? See, there is no wrong age. All ages are right as long as you are committed and you are 100% invested in applying to the university. So अगर आपको लगता है कि what is the right age, जब आप अच्छे से mentally commit कर पाएँ, because PhD is a very very long commitment. You will need patience, you will need a lot of dedication, sincerity बहुत ज़्यादा चाहिए, 100% आपका devotion होना चाहिए. So you have to make sure जब आप commit कर पाएँ, that is the right age. Then that is the right age to start the PhD. After that, there are a lot of students who basically think that entrance exam जैसे है तो उसके लिए हम कैसे तैयारी करें. So entrance exam के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस है वो आपकी बाइबल है. जो यूनिवर्सिटी है, जामिया भी जैसे, वो अपनी वेबसाइट पर सिलेबस हर साल पब्लिश करते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में. टेक अ लुक एट दैट सिलेबस, चेक इट आउट. देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप इग्नोर भी कर सकते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट इट एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सारे टॉपिक्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उन टॉपिक्स को अच्छे से करिए जो सिलेबस में मैंशनड है. And also if you can get a chance to look at the past year papers, then that will be a great idea. You can work on them also. So ये सब होने के बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द NIRF रैंकिंग, दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क विच इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो ये जो लिस्ट होती है ये इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है. हर साल ये लिस्ट निकलती है. सो यू नीड टू चेक कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी NIRF रैंकिंग कैसी है, कितनी है, क्या वो वहाँ पे लिस्टेड है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया व्हेन यू आर डिसाइडिंग फॉर द यूनिवर्सिटी. So on and all, I wish all the very best to all the future aspirants. May you all have a very bright future, and thank you so much Success Classes for giving me with this platform to share my strategy. Thank you.